Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue one important chapter of chemistry, that is organic chemistry. So this is the methods of preparation of alkanes, alkene and alkynes. I have already taken classes on organic chemistry, but separately I just want to take methods of preparation, both laboratory preparation methods of preparation as well as other methods of preparation. So first, alkane. Laboratory preparation of methane CH4 and ethane C2H6. Okay. Methane or ethane. First, methane. Methane can be prepared in laboratory when sodium acetate CH3COONA. So इसका कॉमन नेम सोडियम एसीटेट और सोडियम मिथानोएट. मिथ मीन्स इसमें एक कार्बन होता है, सोडियम इथानोएट क्योंकि दो कार्बन होता है, इथानोएट. ओके, सो मीथेन या इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी when sodium ethanoate or sodium acetate react with soda lime. Soda lime is a mixture of NaOH and CaO, but actual reaction takes place with NaOH, not by with CaO. NaOH, due to its deliquescent nature, it stick to the glass surface. Therefore, so a mixture of soda lime and quick lime or CaO is a mixture of NaOH or caustic soda and quick lime is taken, which is called soda lime. But reaction is only takes place by NaOH. So temperature should be 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होगा प्लस Na2CO3 होगा. सो मीथेन गैस हुआ प्लस Na2CO3. ओके, देन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन. Ethane can be produced in the laboratory by when C2H5CONA. 1, 2, 3. Sodium, common name, sodium propionate और इसका इम्पैक्ट नेम, और सोडियम प्रोपानोएट react with the soda lime. Soda lime is a mixture of NaOH and CaO, but actual reaction takes place with NaOH. ओनली NaOH अगर हम ले लेंगे वो डेलिक्वेशन के वजह से ग्लास सरफेस का अंदर स्टिक हो जाता है, तो 300 डिग्री सेल्सियस. ये होगा C2H6 इथेन प्लस Na2CO3. ओके, सो बोथ मीथेन एंड इथेन, ये दोनों क्या होगा, ये कैसे प्रोड्यूस होगा, बाय the downward displacement of water. Since it is sparingly soluble in water or insoluble in water, हल्का सा soluble, इसलिए downward displacement of water. Okay, then other method of preparation. ये हो गया laboratory preparation of ethane and methane. Other methods of preparation. From bromoethane and iodomethane. Okay.
ब्रोमोमीथेन कहा जाता इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। आइडोमीथेन इसका उपाद में मिथाइल आयोडाइड। ओके, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, when ब्रोमोइथेन C2H5PBr বা ব্রোমোইথেন react to with the nascent hydrogen, okay, it will give क्या होता है C2H6 plus HBr, ओके। देन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहेंगे ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन और इथाइल ब्रोमाइड। इसके बाद आइडोमीथेन CH3I, आइडोमीथेन और मिथाइल आयोडाइड when react with nascent hydrogen it will produce methane plus HI. Okay, so we can say nascent hydrogen can be obtained when zinc dilute HCl is react with zinc powder, then nascent hydrogen is obtained. Okay, so this is the reduction of bromomethane and iodomethane for the production of methane and ethane. Okay, methane, ethane complete. Then laboratory preparation of alkene. Alkene means ethene or ethylene. इसका कॉमन नेम, ज़्यादातर लोग नाम इसको हम बोलते मैंने ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है इथिलीन के नाम पे लोग जानते हैं। ओके, ये हम एक सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़े हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन C2H5OH means ethyl alcohol or ethanol is dehydrated by concentrated sulfuric acid H2SO4। ये कितना टेम्परेचर होना चाहिए 170 डिग्री टेम्परेचर। ओके, देन इथिन प्लस H2O, ये डिहाइड्रेशन पानी अलग हो जाता है। ओके, it is collected by the downward displacement of water since it is insoluble in water। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये मिथिल, इसका कलेक्शन हो गया। आफ्टर प्रोडक्शन द गैस इज पास थ्रू NaOH सॉल्यूशन। हम NaOH सॉल्यूशन में इसको पास करते टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक CO2 and SO2। While collected by downward displacement of water, some aluminum sulfate is added to water to avoid फ्रॉथिंग। जो फ्रॉथिंग होता है उसी को अवॉइड करने के लिए कुछ एल्युमिनियम सल्फेट वो पानी के साथ ये ऐड किया जाता है। ओके, देन और एक इक्वेशन होता है अदर मेथड। ये जब इथाइल अल्कोहल C2H5OH ये क्या करेंगे, हम एक एल्युमिनियम ऑक्साइड ट्यूब Al2O3, ये ट्यूब का अंदर हम 350 डिग्री टेम्परेचर देके एक ट्यूब का अंदर अगर इसको हम पास करेंगे तो यहाँ पे इथिन होगा प्लस वाटर होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट। ओके, देन अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये भी एक हो गया। देन ये भी होता है इथाइल डिहाइड्रो हालोजेनेशन। डिहाइड्रो हालोजेनेशन मतलब पानी अलग होगा
एक हालाइड कंपाउंड, ये भी अलग होगा। when C2H5Cl इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन is react with hot concentrated alcoholic KOH, hot concentrated alcoholic KOH। ओके, ये क्या देता है? इथिन देता है C2H4 प्लस KBr प्लस KCl प्लस H2O। ओके, ये हो गया। तब ये भी हो सकता C2H5Br भी हम कर सकते हैं। C2H5 ब्रोमो इथेन और इथाइल ब्रोमाइड KOH, इसको भी लिख सकते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक। ये क्या होगा? C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, ये समान है। ओके, देन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। इथाइन, इसको इथाइन तो कहेंगे, इसको ज्यादा तो लोग जानते, कॉमन नेम है एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन और इथाइन कैन बी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी व्हेन calcium carbide react with the water. Okay, it will give calcium hydroxide plus ये एसिटिलीन C2H2। ओके, ये हो गया। It is collected by downward displacement of water since it is insoluble in water। इसी में क्या होता है? impurity like phosphine, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया एंड आर्साइन are collected along with इथाइल। इसके साथ ये भी मिलकर रहते हैं। On passing through water, all impurities are removed away except phosphine. Phosphine can be absorbed by passing through acidified potassium dichromate solution। Okay, or acidified potassium dichromate solution or acidified copper sulfate solution। अच्छा, देन फ्लास्क जो यूज करते यूज्ड फॉर कलेक्शन शुड नॉट कंटेन एयर एज इथाइन फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। ओके, जो फ्लास्क में इसको कलेक्शन करेंगे इसमें एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर के साथ वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्मेशन करता है। देन अदर मेथड्स और दूसरा मेथड से कैसे हम ये कर सकते 1,2 डाइब्रोमोइथेन। तो इथेन C लिख दिए, डाइब्रोमो 2 ब्रोमीन लिख दिए 1 और 2 जगह में 1,2 डाइब्रोमोइथेन 1,2 डाइब्रोमोइथेन, इसको कहेंगे 1,2 डाइब्रोमोइथेन 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये क्या होता है? प्लस इसके साथ हम करेंगे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक, इसके साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इथाइन C2H2 ट्रिपल बॉन्ड, बस ऐसे भी लिख दो। 1 हो गया C2H2 प्लस KBr प्लस H2O। हाँ, ये 2H2 प्लस KBr, ये भी 2 होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होता दो साइड। ओके, तब ये प्रोडक्शन होगा। तब मैंने मीथेन, इथेन, इथिन, इथाइन सबका लेबोरेटरी प्रिपरेशन बता दिया। ऑल्सो ये भी बता दिया अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। होप यू विल गो थ्रू दिस portion and will be definitely benefited. Thank you very much.